السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: جہری نماز سے مراد وہ نماز ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ سوال: سب سے کم سن سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ بتائیں۔ جواب: سب سے کم سن سپہ سالار کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان جن کو عامر کہتے ہیں۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب: سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ ملک یمن سے لگتی ہے۔ سوال: چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5/9 کو پیش آیا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی دی؟ جواب:
قرآن پاک کی سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ سوال: چیونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چیونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب: خیبر مدینہ کے قریب واقع ہے۔ سوال: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ سوال: قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے وہ الحیوان ہے۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا نسخہ ہر وقت اللہ پر توکل کرنے والا بتایا گیا ہے۔
सवाल, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस किस्म का अजाब आया? जवाब, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर हवा और आंधी का अजाब आया। सवाल, क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद कौन सा सवाल किया जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद शौहर के हकूक़ का सवाल किया जाएगा। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के बारे में क्या वसीयत की? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के बारे में वसीयत की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया जाए। सवाल, वो कौन से लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं? जवाब, हक के मुनकर लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं। सवाल, तौहीद के बाद किसका दर्जा है? जवाब, तौहीद के बाद रिसालत का दर्जा है। सवाल, वो कौन सा जोड़ा था जिसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद इकट्ठे हिजरत की? जवाब, हज़रत उस्मान गनी और इनकी अहलिया ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद इकट्ठे हिजरत की। सवाल, कौन सा काम करने से ज़िंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं? जवाब, ज़मीन पर गिरे हुए खाने के टुकड़े उठाकर खाने से ज़िंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं। सवाल, अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो इसके अजाले के लिए क्या करना चाहिए? जवाब, सदका देना चाहिए। सवाल, नापाक घी या तेल को कैसे पाक करेंगे? जवाब, नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दें, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए इसे उतार लो और 3 बार इसी तरह कर लो तो घी या तेल पाक हो जाएगा। सवाल, तमय्युम जिन अशिया से जायज़ करार दिया गया है इनकी तफसील बताएं। जवाब, पाक साफ मट्टी, ईंटें, पत्थर, चूना, रेत, कंकर, संगमरमर, अकीक और फिरोज़ा से तमय्युम जायज़ करार दिया गया है। सवाल, वो कौन सा वक्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, मौत के वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती।
सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब, कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल, वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त उनकी हम उम्र थी? जवाब, हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा। सवाल, कुरान पाक की कितनी सूरतें शख्सियत के नाम से हैं? जवाब, कुरान पाक की 9 सूरतें शख्सियत के नाम से हैं। सवाल, वकूफ़ अरफा किस दिन को कहा जाता है? जवाब, 9 जिलहज को वकूफ़ अरफा कहते हैं। सवाल, कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब, हुर्फ ज़्वाद कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ है। सवाल, ख्वाब में फौत शुदा लोगों को देखना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, ख्वाब में फौत शुदा लोग नज़र आना इसके पीछे एक हकीकत है, बशर्ते कि हम इनके बारे में सोचते नहीं हैं। मसलन अगर किसी का कोई अजीज़ फौत हुआ हो और वो इसे याद करके रोए और इसके बारे में सोचे तो फिर इसे ख्वाब में फौत शुदा लोग नज़र आएंगे। तो ये इसके सोच का हिस्सा है जो इसे साथ दिन भर सोचता है। लेकिन अगर इंसान इन फौतशुदा लोगों के बारे में नहीं सोचता ना ही याद करता है तो फिर इस सूरत में फौतशुदा लोग ख्वाब में नज़र आए तो फिर इसके पीछे कोई हिकमत है। साहब ताबीर के नज़दीक अगर कोई फौतशुदा शख्स ख्वाब में कोई चीज़ देता है तो इसका मतलब खैर व बरकत है, आपके हक़ में भलाई और रिस्क में इजाफा है। और अगर फौतशुदा कोई चीज़ ले जाता है तो इस पर आपने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, सदका खैरात करनी है, क्योंकि ये कोई परेशानी वाला मामला हो सकता है। एक वो फौतशुदा शख्स जो ख्वाब में ना कुछ देता है ना लेता है बल्कि परेशान नजर आता है तो इसके लिए भी इस्तग़फ़ार करे। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब, मनासिक हज का अहम तरीन दिन यौम अरफात है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान में बसाया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को कहाँ बसाया था?
जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 8000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिनों को ज़मीन पर बसाया था। सवाल: किस सूरत का नाम सब सूरतों से तवील है? जवाब: सूरत बनी इसराइल, जो तरतीब में 17वीं और नज़ूल में 50वें नंबर पर है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक किसको दी थी? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक अपने वालिद आज़र को दी थी। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने जब कुएं में डाला, वो कनान से कितनी दूर था? जवाब: ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर खाया था। सवाल: कौन सा कुरैशी सरदार जंग बदर में हाजिर ना था, लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब: अबू लहब जंग बदर में हाजिर ना था, लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था। सवाल: कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब: कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ अलिफ है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।